فضائی حدود استعمال کرنے سے پاکستان نے کیا انکار۔ پاکستانی فضائی حدود نہ ملنے سے ادے پور، احمد آباد اور عمان سے گزریں گی پروازیں۔ عمر عبداللہ نے پاکستانی اقدام کو بتایا بدقسمتی۔ محبوبہ نے بھی سرکار کی تنقید اور اسے بغیر بنیاد پی آر و اسراف دیا قرار۔ نیشنل کانفرنس سے شدید اختلافات کے باوجود آغا سعید روح اللہ کے گھر پہنچے ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ روح اللہ کے والد آغا سعید مہدی کی برسی پر دعائیہ مجلس میں فاروق عبداللہ ہوئے شریک۔ دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد نیشنل کانفرنس کے لاہ عمل پر روح اللہ ہے نیشنل کانفرنس سے ناراض۔ اور شہر خاص میں انٹرنیٹ بند رہنے سے مقامی آبادی پریشان، طالب علم آن لائن کلاسز سے محروم۔ تاجروں نے بھی جتائی سرکار کے فیصلے پر ناراضگی، کہا جب سے انٹرنیٹ میں خلل پڑی تب سے دکانداروں کے کام پر بھی منفی اثر پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سپہر کے 4 بج چکے ہیں۔ سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رپورٹ اپنے میزبان میر ہلال ہانجوری کے ساتھ، اور اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں، لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سری نگر شارجہ کے اس اڑان سے جس سے حال ہی میں انوگریشن کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے جموں کشمیر کے لیے ایک بڑی راحت قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب اس حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ اب پاکستان نے جموں و کشمیر کے سری نگر سے شارجہ تک پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال سے صاف انکار کر دیا ہے، جس سے 11 سال بعد بحال کیا گیا تھا۔ فیصلے کی وجہ سے سری نگر سے شارجہ کی پرواز میں اب 1 گھنٹہ سے زیادہ کا وقت لگے گا، کیونکہ طیاروں کو اب ادے پور، احمد آباد اور عمان کے راستے اڑنا پڑے گا، اور پروازیں بھی مہنگی ہو جائیں گی، یعنی ان پروازوں میں جو لوگ سوار ہو جائیں گے اب ان کی ٹکٹ تھوڑی مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے راستے سے، پاکستان کے جو فضائی حدود سے اگر سری نگر سے یہ پرواز شارجہ جاتی ہے تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ کم از کم پڑتا ہے، اور اس میں جو اخراجات ہے کرائے کے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں اس سے ملک ہندوستان کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس سے بھارت کے سٹینڈ میں کسی نہ کسی حد تک بوسٹ ملا ہے، لیکن وہیں پر یہ خبر ایک بار پھر سے جب آ گئی کہ اب پاکستان نے اس منہ سے انکار کیا ہے، تو اب اس سے بھی کہیں نہ کہیں سیاست تیز ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ 23 اکتوبر کو، یعنی 23 اکتوبر کو ہی مرکزی داخلہ وزیر جب جموں کشمیر کے دورے پر تھے تو انہوں نے سری نگر کے شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈے سے سری نگر شارجہ کی ابتدائی پرواز کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا، جس سے وادی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 11 سال کے بعد براہ راست ہوائی رابطہ بحال ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسی دن جب اس پرواز کا افتتاح ہوا تھا، ہری جھنڈی دکھائی گئی تھی، اور قومی سطح پر یا مقامی سطح پر اس کے چرچے ہو رہے تھے، تو اسی وقت جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا پاکستان کا دل بدل گیا ہے اور سری نگر سے شروع ہونے والی پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ ایک سوال اس وقت انہوں نے پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر نہیں تو یہ پرواز اسی طرح دم توڑ جائے گی جس طرح یو پی اے کے دوران سری نگر دبئی فلائٹ کا انتقال ہوا تھا، یہ عمر عبداللہ نے کہا۔ لیکن آج عمر عبداللہ نے اس معاملے کو لے کر پھر سے ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ عمر عبداللہ کا ٹویٹ آیا ہے، اور انہوں نے اس اقدام کو جو پاکستان کی جانب سے ایئر سپیس نہیں دی گئی ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سال 2009-2010 میں سری نگر سے دبئی جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ گو فرسٹ ایئر ویز کو پاکستانی فضائی حدود سے زیادہ پرواز کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تعلقات میں پگھلنے کا اشارہ بھی تھا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جب انہیں یہ لگا کہ اب اس کی بار یہ یک جو ہے پگھلے گا اور
जो गो फर्स्ट एयरवेज को अब ये उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी तो उससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें भी बेहतरी आएगी। लेकिन बदकिस्मती का इजहार उन्होंने किया और कहा कि इस तरह की चीज नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला तो अपनी जगह, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट किया और महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट को लेकर मरकजी सरकार की तनकीद की और तनकीद में उन्होंने कहा, यानी महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्होंने कहा कि यह हैरान कुन बात है कि मरकजी सरकार ने श्रीनगर के बैनुल अक़वामी परवाज के लिए पाकिस्तान से अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत हासिल करने की जहमत तक नहीं की, बगैर किसी बुनियाद के, यानी कोई बगैर किसी ग्राउंड वर्क के सिर्फ इसराफ और पीआर बनाने की कोशिश की गई है। यानी महबूबा मुफ्ती का डायरेक्ट ये बीजेपी सरकार पर ये तनकीद थी कि वो इस पर माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि दोनों सूरतों में, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, इसको मुल्क के अंदर किस नजर से अब देखा जाएगा। क्योंकि एक बात सामने आई थी, एक तासुर सामने आया था, एक नैरेटिव सामने आया था कि इससे मुल्क के अंदर जो है एक बड़ी राहत मिल सकती है डिप्लोमेटिक सतह पर। हमारे सीनियर साथी इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। इशफाक, चूंकि एक बड़ा कदम इसे तस्वर किया जाता था कि अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस दुबई जाने वाली या शारजा जाने वाली श्रीनगर से बराह रास्त परवाज को मिलती है तो उस वक्त कहा गया था कि यह मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से डिनाई किया गया है और इनकार किया गया है कि वो ये एयर स्पेस नहीं देंगे। एक डिप्लोमेटिक स्तर पर आप इसे कहां पर देखते हैं? और दूसरी बात यह कि जिन मुसाफिरों को इस परवाज से सफर करना था तो उनके लिए कितना नुकसानदेह ये स्टेटमेंट आज का आप समझ रहे हैं? हम एक बार फिर से इशफाक से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत बातें हुई थी इस मामले को लेकर, यहां तक कि पाकिस्तान के जो अब्दुल बासित हैं, जो भारत में हाई कमिश्नर थे, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि अगर ये चीज वाकई हुई है कि पाकिस्तान ने इस वक्त 11 साल या 10 साल के बाद अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की भारत को इजाजत दी तो इसमें जरूर किसी एंड से, किसी मुल्क की जानिब से प्रेशर आया होगा पाकिस्तान पर। इशफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, जानना चाहेंगे कि आप इस मूव को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि मेरा सवाल यह है कि एक तरफ जो इन परवाजों के जरिए मुसाफिर सफर करने वाले थे, माना जा रहा कि उनका सफर भी न सिर्फ अब लंबा हो जाएगा बल्कि महंगा भी पड़ेगा, नंबर एक। और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स पर आप कहां पर इस मामले को देखते हैं, क्योंकि इससे भारत के लिए इससे पहले एक बड़ी जीत करार दिया गया था। देखिए, जहां तक इस मूव की हम बात करें, शायद वाकई तौर पर होमवर्क पूरा नहीं हुआ था या कहीं मिसकम्युनिकेशन थी, क्योंकि जब पहले इस चीज को शुरू किया गया तो हमने पाकिस्तानी ज़राए अबलाग और पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने नोटम इशू किया था बाज़ाब्ता तौर पर कि दिल्ली से या जम्मू कश्मीर से जो परवाजें आनी है और जिन्होंने नोटिफाइड रूट से चलना है उनको इजाजत दी जाएगी। उसके हमने देखा कि श्रीनगर से जो पहली परवाज चली उसमें कोई परेशानी नहीं आई, उसके बाद बैक टू बैक 2 परवाजें और चली, उसमें कोई परेशानी नहीं आई। वज़ीर आज़म साहब का जहाज पाकिस्तानी स्पेस को क्रॉस करते हुए निकल गया, उस वक्त भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन इशू कब रेज हुआ? जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और फॉर्मल डिप्लोमेट जितने भी हैं उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पाकिस्तान बार बार ये जो यू टर्न कश्मीर के मामले पर ले रहा है, आखिर इसके पीछे की कहानी बताई जाए। मुझे याद है अब्दुल बासित के साथ जब हमने भी बात की तो उन्होंने 2 सवाल उठाए थे। एक, उन्होंने खुलेआम ये माना था कि ये डिप्लोमेटिक जीत है जी, जिस दिन MOU साइन हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जनाब प्लस एड ऑन हो गया जी, इसमें अभी एक जहाज आएगा, बहुत सारे जहाज आएंगे जो शायद नहीं होना चाहिए। और उनकी समझ ये थी कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें अभी कश्मीर के मामले का पूरा इल्म नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरी गलतियां जो है एक के बाद एक पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान का निजाम जो है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल सर्कल्स है, वहां पर बहुत गहरा दबाव है
इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, एस्टैब्लिशमेंट पर भी, आर्मी पर भी और साथ साथ इमरान खान पर भी, कि वो कोई इस तरीके का कोई भी मुंह ना करे जिससे जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा के लिए हल हो सके। एक तो ये बात खुलकर सामने आ रही है, और दूसरी बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये भी है कि जिस तरीके से अब वहाँ कुछ सूबों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, और पाकिस्तान की इनर सिचुएशन जो है वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो सारी चीजें हैं एक तवज्जो मकबूल करवाने के लिए कि देखिए हम इंटरनेशनल फोरम पर कैसे काम कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह। हमने अब इसको थोड़ा सा और क्लिप करना होगा, जहां उन्होंने इस पर पाबंदी आयद कर दी कि नहीं हो सकता, वहीं पर एनएसए की मीटिंग से भी आने से उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि एक मौक़िफ़ इमरान खान का और इमरान खान की पूरी हुकूमत का ये है कि अफगानिस्तान के लिए बाज़ाबादकारी का मामला ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर होना चाहिए और हर मुल्क को आगे आना चाहिए। और उस इमदाद को लेकर जब भारत का 5000 टन गुंदम जो है जो वहाँ बेचना था, उसके लिए पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें बैक टू बैक जब आप देखेंगे तो पता लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, जो बातें हैं, वो अपनी जगह पर सही चल रही थी, लेकिन जो विद इन द सिस्टम पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो प्रेशर है, उसी का यह नतीजा है कि आज एक यू टर्न जो है वो हमने देखा है, और इससे पहले भी हमने देखा था जब यूपीए 1 और 2 में इस तरीके की कोशिश। बिल्कुल गवार, चूंकि एक इसका एक्सटर्नल डायमेंशन है और ये काफी जकड़ा हुआ, काफी इंटरलिंक्ड आपस में लग रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि बाकी एजेंसीज भी नजर आई हैं। लेकिन जब हम इंटरनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं तो उमर अब्दुल्ला ने उसी वक्त एक सवाली अंदाज में कहा था कि क्या पाकिस्तान का दिल बदल गया है 10 साल के बाद, नंबर एक। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती का भी आज का ट्वीट जिसमें वो बता रही है कि ग्राउंड वर्क नहीं हुआ है बल्कि पीआर और माइलेज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे आप किस नजर से देखते हैं, मुख्तसर से बताइए। देखिए, जहां तक पीआर का सवाल है, मैं उसको पीआर मानूंगा नहीं, क्योंकि जब जहाज उठता है तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लॉ है कि आप तभी किसी का एयर स्पेस यूज करते सकते हैं जब आपको नोटम आया हो, जब आपकी क्लियरेंस आई हो। जब क्लियरेंस नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। तो ये एक, चलो अगर चला भी गया, 2-3 नहीं जाते, तो ये पहला मुझे यहाँ पर लगता है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन इमरान, जहां तक उमर का सवाल है, तो उमर का ट्वीट आपको दिखेगा, उन्होंने पाकिस्तानी मंशे पर पहले ये सवाल खड़े कर दिए थे। देखिए, माजी में भी ये हुआ और ये क्या मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, जमानत है कोई इसकी, वो आज हमारे सामने है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे तो थर्ड पार्टी इसमें है, जो खलीजी मुल्क इसमें मसालतकार की हैसियत से काम कर रहे हैं, दरपर्दा होकर काम कर रहे हैं, उनका एक बड़ा असर था इसमें, इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। लेकिन दोनों जगहों से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप देखेंगे तो इनर डायमेंशन में बड़ी चीजें हैं, आगे 5 रियासतों के अंदर चुनाव है और 10 चीजें हैं, वहां से भी कुछ ऐसी तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से ज्यादा हम जो तवक्कुआत करते हैं कि तेजी के साथ हालात बदल के और भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो, शायद वो मुस्तकबिल में ऐसा हो, वो आज के इस फैसले बहुत कम नजर आ रहा है। बिल्कुल गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर, जो हमें इस खबर के हवाले से अपनी एनालिसिस दे रहे थे, क्योंकि काफी अहमियत की हामिल खबर है, क्योंकि डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स पे जब हम देखते हैं तो इससे भारत के लिए एक बड़ा कदम और बड़ी जीत करार दी जा रही थी। लेकिन अचानक इसमें एक मुंह नया सा देखने को मिला, जिसमें अब पाकिस्तान ने डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि वो अपनी फजाई हदूद इस एयरलाइंस के लिए, यानी श्रीनगर दुबई के लिए अब इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। आगे क्या कुछ हो जाएगा और इस पर मुल्क के अंदर सियासत किस तरह की रहेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। चलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बड़गाम के अंदर दिखे और यहां पार्टी के एक सीनियर मोस्ट लीडर और साबिक वजीर आगा सईद रूहुल्लाह के घर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए हुए थे। दरअसल आज आगा सईद रूहुल्लाह के वालिद आगा सईद मेहदी की बरसी थी और इस मुनासबत से यहां पर एक दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया था, और इस दुआया मजलिस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता बाकी बड़े लीडरान और खासतौर पर जिला बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले लीडरान भी यहां उनके हमरा थे, और इस मौके पर उन्होंने आगा रूहुल्लाह के साथ भी मुलाकात की, उनके घर भी तशरीफ लाई है। लेकिन आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से आगा सईद रूहुल्लाह काफी नाराज थे, ठीक उस वक्त से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, और 370 हटाए जाने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हो, बार बार
आगा सईद रूहुल्लाह ने सवालात उठाए और उनका सवाल यही था कि 370 की बहाली को परसू करने के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाहेअमल होना चाहिए था उसमें काफी नरमी दिखाई दे रही है। उनकी हमेशा ये डिमांड रही है कि जो परसुअल रहना चाहिए था, जिस शिद्दत से जद्दोजहद करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत खामोशी से बैठी हुई है। तो इस तरह से वक्तन फवक्तन आगा सईद रूहुल्लाह ने अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर रहने की कोई बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा था कि जो उसके अंदर है वो उसका इजहार करना चाहते हैं। और पार्टी के अंदर जमहूरियत करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने भी बार बार यही कहा है कि हर किसी को अपनी बात रखने का मुकम्मल हक है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है। हालांकि बाज़ औक़ात ये खबरें भी गश्त करने लगी थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं बल्कि रूहुल्लाह ने बार बार ये कहा था कि वो तब तक चुनाव भी नहीं लड़ेंगे जब तक ना जम्मू कश्मीर के अंदर जो 370 है वो बहाल हो जाएगी। इस खबर के हवाले से हम अपने नुमाइंदे अशरफ से मजीद तफसीलात जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ नासिर असलम वानी भी आगा सईद रूहुल्लाह के घर आए हुए थे। उन्होंने रूहुल्लाह से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज आगा सईद मेहदी साहब की 21वीं बरसी थी और ये कोई पहली बार नहीं है। हर बरसी पे डॉक्टर साहब या उमर साहब जो भी यहाँ लोग मौजूद रहे हैं, यहाँ ज़रूर आए हैं, इनके साथ यकजहती का इजहार किया है। ये कोई नई बात नहीं है। हम देखते थे जब भी कोई मीटिंग होती थी तो आगा रूहुल्लाह साहब मीटिंग में होते थे, मगर जैसे उसमें शमूलियत वाज़ह हुई। आपका जो है एक तंजीम में एक जमहूरी निज़ाम है जिसमें हर किसी की बात सुनना और उस बात पे अमल करना ये एक लाजमी अमल है और उसी अमल का मुजाहरा आपने भी देखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही पेज पे हो, कभी कभी तंजीमों में इख्तलाफ भी होती है बात की, और ये भी आपको जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी तंजीम में दूसरी ओपिनियन को हमेशा सुना जाता है। और ये थे नासिर असलम वानी जो कि सूबाई सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बराए कश्मीर। उनका मानना है कि दुआया मजलिस थी और उसके बाद वो यहाँ पर शरीक हुए और पार्टी के अंदर जमहूरियत है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। हम अशरफ डार से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अशरफ, आपका खैर मकदम है। बड़ी मुद्दत के बाद आज हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बड़गाम के अंदर रूहुल्लाह की रिहाइशगाह पे देखा और कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आ रही हैं, नासिर असलम वानी ने भी जो बात कही है कि दुआया मजलिस थी, तो क्या ये सिर्फ दुआया मजलिस ही थी या कि फिर आगा सईद रूहुल्लाह को मनाने की भी कोशिश इसमें हो सकती है? देखिए हिलाल, अगर हम बात करें अचानक से फारूक अब्दुल्ला का बड़गाम का दौरा करना, और जाहिर सी ये बात है कि जिस तरह से शहीद आगा सईद मेहदी की जो है 21वीं बरसी, जो कि आगा सईद रूहुल्लाह के जो वालिद है उसकी 21वीं बरसी जो है मनाई जा रही है जगह जगह पे। आज उसी सिलसिले में बड़गाम के उनका जो अपना ही घर है वहाँ पर जो है आज दुआई मजलिस भी रखी गई थी, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए और इस मजलिस में उन्होंने शिरकत की। मगर अचानक से जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो अचानक से आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को इस अंदाज से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आगा रूहुल्लाह की बातें चल रही है, जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के जो स्टेटमेंट्स है, उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी तो नजर आ रही है। अब चूंकि जाहिर तौर पर वो ये इजहार नहीं कर पाए कि मैं उससे दूर हूं या नहीं हूं, मगर जिस तरह से उसने बयान दिया उससे यही लग रहा है कि आगा रूहुल्लाह कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज दिख रहे। शायद आज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है आगा फारूक अब्दुल्ला वो अचानक आए, कहीं ना कहीं इससे ये भी कहा जा सकता है एक रास्ता हमारा हो सकता है बात करने की, जो आगा रूहुल्लाह बात कर रहे हैं उस पर बात करने की कोशिश। मगर दुआया मजलिस थी, मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था अंदर। हमने कोशिश की थी कि हम फारूक साहब से बात करें इस बारे में कि खाली ये यहाँ पर दुआया मजलिस थी या आगा रूहुल्लाह को मनाने की भी कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं अंदर एक रूम में थे, वो करीबन 15 से 20 मिनट बात चली। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उस पर भी बात हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कई बार बात करने की कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रूहुल्लाह, मगर आगा रूहुल्लाह उन मीटिंगों में नहीं गए। और दूसरा, हाल ही में हमने देखा बड़गाम में भी एक जलसा ही हम कैसे वहाँ हुआ था, उसमें आगा रूहुल्लाह को इन्वाइट किया था, वो गए नहीं। फिर अचानक से आगा रूहुल्लाह उसमें जाते और उस वक्त जनरल सेक्रेटरी जो है अली मोहम्मद वो वहाँ पर थे। जब आगा रूहुल्लाह ने वहाँ तकरीर किया तो कहीं ना कहीं पार्टी को उससे अंदाजा हुआ कि आगा रूहुल्लाह कितने नाराज है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जो आगा रूहुल्लाह की आवाज है। बहुत शुक्रिया अशरफ, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मोहम्मद अशरफ बड़गाम से हमें तफसीलात दे रहे थे और बाज़ाब्ता तौर पर हवाला भी दे रहे थे कि कब कब
आगा सईद रूहुल्लाह ने ट्वीट किया पार्टी के उस मंसूबे के खिलाफ या पार्टी के लाहेमल के खिलाफ, तरीकाकार के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, जब बडगाम के अंदर एक जलसा हुआ और उसके बाद अचानक उस जलसे में भी आगा सईद रूहुल्लाह आए और उसके बाद जिन जज्बात का उन्होंने इजहार किया, जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद पार्टी के अंदर भी उस पर बहस मुबाहिसे शुरू हुए। लेकिन जो आगा सईद रूहुल्लाह है उनके बारे में यही कहा जाता है कि इस मामले में वो काफ़ी शिद्दत रखते हैं और अपने मंसूबे पर, अपनी जो आइडियोलॉजी उसकी है उस पर वो कारबंद भी रहते हैं। लेकिन आज जो दुआया मजलिस यहाँ पर हुई, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड यही है कि ये दुआया मजलिस ही थी, कोई सियासत इसमें नहीं हुई है, कोई सियासत के हवाले से उन्हें ऑन बोर्ड लेने की बात भी नहीं हुई है। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये भी कहते हैं कि इस दौरान जो नाराज़गी है उसको दूर करने की भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से कोशिश की गई है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं डाउनटाउन की, क्योंकि डाउनटाउन के अंदर आपको याद ही होगा कि काफ़ी वक्त से, लगभग 1 माह से तकरीबन, अब यहाँ पर कुछ इलाकों में इंटरनेट की जो सहूलियात है वो उससे अब महदूद कर दिया गया है, यानी कुछ ही घंटों यहाँ पर इंटरनेट की जो सहूलियत है वो दस्तयाब रहती है। नतीजा ये है कि जो ऑनलाइन बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आजकल की एजुकेशन, जिसे ई एजुकेशन भी कहते हैं, वो इंटरनेट के जरिए ही ज़्यादातर हासिल की जाती है। यहाँ तक कि जितने भी काम है वो इंटरनेट के जरिए ही बेहतर या बेशतर इलाकों में किए जाते हैं। लेकिन आज डाउनटाउन, जो कि एक मसरूफ तरीन शहर है, इलाका है, वहाँ पर इंटरनेट की कमी को लेकर या इसे महदूद करने को लेकर अब मकामी लोग भी निकल आए थे और उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें इंटरनेट फैसिलिटीज़ फराहम की जाए। ख़ासतौर पर जो ताजिर है, जो दुकानदार है, उनकी जानब से भी सरकार से मुतालबा किया, अपील की गई कि जहां पहले ही कोविड से और बाद एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जो यहाँ हड़ताल रही और कर्फ्यू रहा, उससे जब उनका तिजारत काफ़ी ख़राब हुआ तो उसके बाद अब इंटरनेट की पाबंदी से भी उनके तिजारत पर भी मनफी असर पड़ा। मकामी लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारा यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो यहाँ पे नेट बंद हो गया। वो पता नहीं, हमारी तो नेटवर्क भी नहीं चल रही है, फ़ोन भी नहीं ऑन हो रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा मसला है, जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो हम MPA करते हैं, मगर हमारे जो नेटवर्क ही नहीं चलती है तो MPA कहाँ होगा। हम बहुत मुसीबत में यहाँ पे है। अब हम ही नहीं, यहाँ पूरा जो डाउनटाउन एरिया है हमारा, मतलब जो यहाँ शहरी खास है, पूरा शहरी खास में नेटवर्क ही नहीं चल रही। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं चाडोरा कस्बे की, क्योंकि ये वो कस्बा है जहां पर 4 बजे के बाद अवाम और दुकानदार यही शिकायत करते हैं कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती ही नहीं है, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या उसके साथ साथ तहसील ऑफिस हो या SDM ऑफिस हो। हालांकि ये सारे ऑफिस आधे किलोमीटर की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, लेकिन जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक जैम के हैं, शाम के हो या दिन के हो। खास तौर पर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहता है। अगर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को भी आना हो तो उससे 1 मिनट का सफर कम से कम 1 घंटे में तय करना पड़ता है। ऑटो वाला हो, सोमो वाला हो या किसी की निजी गाड़ी हो या आम मुसाफिर बस हो, हर किसी को घंटे का सफर यहाँ पर करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई नहीं होता है। मकामी लोग यही कहते हैं कि वो टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद उन्हें हैरानी होती है कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं होता है। जब हमने भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बात की तो वो सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं। जब हमने भी ये मामला जो SDM की नोटिस में लाया तो वो यही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि उन्होंने ऑर्डर्स पास ऑन किए हैं और जो इसके कंसर्न्स हैं बहुत जल्द इस पर रोकथाम किया जाएगा। लेकिन हक बात यही है कि लास्ट टाइम जब हमने यही खबर चलाई थी उसके बाद किसी हद तक इस इलाके में ट्रैफिक की जो आवाजाही है इसको स्ट्रीमलाइन किया गया था। तब भी यही अमला था, तब भी यही दफातर थे, तब भी यही कस्बा था, यही गाड़ियां जाती थी, तो फिर तब तक यहां पर सब कुछ स्ट्रीमलाइन क्यों था? आज क्या वजह है कि आज यहां पर ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा है? मकामी लोग, खासतौर पर दुकानदार, यही कहते हैं कि 4 से लेकर 7 बजे तक यहां पर कोई ट्रैफिक का एहलकार नहीं होता है या कोई ऑफिस भी इसमें मुदाखलत नहीं करता है, जैसे यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। मकामी दुकानदार क्या कहते हैं, आपकी नजर करते हैं। इतना जाम पड़ता है सुबह शाम, यहाँ पर किसी को, पैदल वाले को भी मुश्किल होता है चलना।
एडमिनिस्ट्रेशन खामोश बैठी है। आज तक हमने 12 इजदा किया है कि इस मामले को मेहरबानी करके ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम इसके लिए डिप्यूट रखे, और कम से कम पुलिस स्टेशन है उनको भी चाहे कि इस मामले को देखा जाए कि कितना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक इतना पड़ा है सुबह शाम, घंटों हम यहाँ पड़े रुके रहते हैं, और ख़ासकर हम यहाँ पता नहीं है ये जो दोनों साइड और पता नहीं है ये दोनों साइड में जो पटरियाँ इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा जमा के रखा है तो आने जाने नहीं देते हैं, और ट्रैफिक जाम ज़बरदस्त पड़ा है, और ख़ासकर जो पैदल चलने वाले को भी मुश्किल हो जाता है। हमने ट्रैफिक पुलिस का खाली 4 बजे तक काम है, क्योंकि यहाँ 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक इतना जाम होता है कि खुदा ही बेहतर जानता है। कल एक एम्बुलेंस फंसी थी जिसमें एक पेशेंट क्रिटिकल था, उस पुल से यहाँ तक उसको 1 घंटा लग गया, जो कि 1 मिनट का सफर नहीं है। फिर यहाँ के जो दुकानदार है उन्होंने जाम निकाला, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई, अदरवाइज उसकी डेथ एम्बुलेंस में ही हो जाती। अब जो यहाँ के मुकामी सरकार है, जैसे चलिए नाज़रीन, आपने मकामी लोगों का सुना। ये मकामी दुकानदार है जो कहते हैं कि यहाँ जो काम एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है वो दुकानदारों को करना पड़ता है, वही सड़कों पर निकलते हैं, वही ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करते हैं। बड़े ओहदेदार भी जब इस खबर को सुनेंगे तो उन्हें भी समझना चाहिए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि आधे किलो की रेडियस में पुलिस स्टेशन भी है, म्यूनसिपैलिटी भी है, SDM का ऑफिस भी है, तहसील ऑफिस भी है, और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, जहाँ से एम्बुलेंस हर आधे घंटे के बाद, हर घंटे के बाद गुजरती है। तो इस वजह से इस इलाके की अहमियत और इस हॉस्पिटल की अहमियत और इस ट्रैफिक जैम को दूर करने की अहमियत कितनी है, ये मामला हमने SDM साहब के साथ उठाया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि इसमें एक तो बुनियादी वजह यही है कि हमारी जो सड़क चाड़ूरा टाउन की है, ये पिछले तकरीबन 30-40 साल से ये सेम सड़क वही है, और ट्रैफिक का जो है वो बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड उसका इंक्रीज़ हो चुका है। लेकिन इसमें हमने कुछ इसमें आजकल जो हमारे उसकी एक और वजूहत भी है, कुछ मिनरल ब्लॉक्स यहाँ पे ऑप्शन हो गए हैं, उसकी वजह से उनकी जो ट्रक्स वक्स का भी आना जाना रहता है हैवी ट्रैफिक का, और हमने जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ जाम हो रहा है उसको नज़र में रखते हुए जो हैवी व्हीकल्स के लिए जो है ऑर्डर्स इशू कर लिए हैं कि उनको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कुछ टाइम्स के लिए, ताकि जो है जो हमारा पीक टाइम होता है उस टाइम पे ट्रैफिक का जो है जाम ना हो। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हैव बीन पास टू ट्रैफिक पुलिस ऑल्सो दैट जो भी हमारी सोमो वाले हजरात जो बाहर सड़क पे रहते हैं उनको भी बताया कि स्ट्रिक्टली इनको फॉरवर्ड करें कि सड़क पे ना रहें, जिसकी वजह से जो है ये जो है वहाँ पे रश ना हो। और इसके अलावा ये मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।